اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کی بجائے خود دروازہ کھولا۔ سعد بن معاذ نے کہا، بنو قریظہ کے سردار، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے انکار نہیں، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی کو مانگتا تھا۔ اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شبخون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان۔ تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ کعب بن اسد نے کہا، ہاں سعد، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ زندہ تو رہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، صرف زندہ نہیں رہیں گے، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی ہے۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینے میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔
साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु उस खैमे में लेट गए, लेकिन उठ बैठे और उन्होंने खुदा से दुआ मांगी कि उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हर उस कौम के खिलाफ लड़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं समझती। मगर लड़ाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने खुदा से इल्तिजा की कि अगर मेरे नसीब में कोई और लड़ाई लड़नी है तो मुझे उसमें शरीक होने के लिए जिंदगी अता फरमा। अगर ये सिलसिला खत्म हो गया है तो मेरे जख्म को खोल दे कि मैं तेरी राह में जान दे दूं। साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की ये दुआ 3-4 आदमियों ने सुनी थी, लेकिन उन्होंने उसे अहमियत नहीं दी थी। सुबह किसी ने देखा कि साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे से खून बह बह कर बाहर आ रहा था। खैमे में जाकर देखा, साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके थे। उन्होंने खुदा से शहादत मांगी थी। खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उनके सीने का जख्म खुल गया था। बनु कुरैज़ा की तबाही की खबर मक्का पहुंची तो सबसे ज्यादा खुशी अबू सुफियान को हुई। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, बनु कुरैज़ा को इस बदअहदी की सजा मिली है जो उसके सरदार काब बिन असद ने हमारे साथ की। अगर उसका कबीला मदीना पर शबखून मारता रहता तो फतह हमारी होती और हम बनु कुरैज़ा को मौत की बजाय माल गनीमत देते। क्यों खालिद, क्या बनु कुरैज़ा का अंजाम बुरा नहीं हुआ? अबू सुफियान ने पूछा। खालिद ने कहा, मदीने से पसपाई का दुख उतना ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी खुशी भी मेरा ये दुख हल्का नहीं कर सकती। बदअहद की दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहूदियों ने किसके साथ वफा की है? अपनी बेटियों को यहूदियत के तहफ़्फ़ुज़ और फरोख के लिए दूसरी कौमों के आदमियों की अय्याशी का जरिया बनाने वाली कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अबू सुफियान ने कहा, हमें मुसलमानों ने नहीं, तूफानी आंधी ने महासरा उठाने पर मजबूर किया था। हमारे पास खुराक नहीं रही थी। खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम लड़ना ही नहीं चाहते थे, और उठकर चले गए। खालिद अब खामोश रहने लगे थे। उन्हें कोई जबरदस्ती बुलाता तो वो झंझला उठते। उनके कबीले का सरदार अबू सुफियान उनसे घबराने लगा था। खालिद उन्हें बुज़दिल कहते। खालिद ने अपने आप से अहद कर रखा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त देंगे, लेकिन उन्हें जब मैदान जंग में मुसलमानों की जंगी चालें और उनका जज्बा याद आता तो वो दिल ही दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराजे तहसीन पेश करते। ऐसा अस्करी जज्बा और ऐसी अस्करी फहमो फरासत कुरैश में नापैद थी। खालिद खुद इस तर्ज पर लड़ना चाहता था, लेकिन अपने कबीले से उन्हें ताउन न मिलता। आज जब वो मदीना की तरफ अकेला जा रहा था तो उसे मारकाए खंदक से पसपाई याद आ रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो शर्मसार भी हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने 1 साल किस तरह गुजारा था। वो मदीने पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन अहले कुरैश मदीना का नाम सुनकर दुबक जाते। आखिर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। उसे ये खबर अबू सुफियान ने सुनाई थी। मुसलमान मक्का पर हमला करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमने साबित कर दिया है कि कबीला कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता है। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुमने अपने कबीले को कभी बताया है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर सकते हैं? क्या कबीला हमला रोकने के लिए तैयार है? अबू सुफियान ने कहा, अब इस बहस का वक्त नहीं कि हमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे इत्तला देने वाले ने बताया है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1500 है। तुम कुछ सोच सकते हो? खालिद ने कहा, मैं सोच चुका हूँ। मुझे 300 सवार दे दो, मैं मुसलमानों को रास्ते में रोक लूंगा। मैं किराल ख़ईम की पहाड़ियों में घात लगाऊंगा। वो उसी दर्रे से गुजर कर आएंगे। मैं उन्हें उन पहाड़ियों में बखेर कर मारूंगा। अबू सुफियान ने कहा, तुम जितने सवार चाहो ले लो और फौरन रवाना हो जाओ। ऐसा ना हो कि वो दर्रे से गुजर आए। खालिद को आज याद आ रहा था कि उस खबर ने उसके जिस्म में नई रूह फूंक दी। उसने उसी रोज 300 सवार तैयार कर लिए। मुसलमानों की तादाद 1400 थी। उनमें ज्यादातर नफरी प्यादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की क़यादत उसके हाथ में है। अब अबू सुफियान उसके सर पर सवार नहीं था। सब फैसले उसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया। खालिद कुछ देर आराम करके और घोड़े को पानी पिलाकर चल पड़ा। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। मक्का से घोड़ा आराम आराम से चलता आया था। खालिद बिन वलीद बड़ी मजबूत शख्सियत का इंसान था। उसके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज्यादा हुआ करते थे। वो जहन को अपने कब्जे में रखता था, मगर मदीने को जाते हुए जहन उस पर काबिज हो जाता। यादों के थपेड़े थे जो उसे तूफानी समंदर में बहती हुई कश्ती की तरह पटक रहे थे। कभी उसकी जहनी कैफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो, और कभी यूं जैसे उसे कहीं भी पहुंचने की जल्दी ना हो। उसकी आंखों के आगे मंजिल सराब बन जाती और दूर ही दूर हटती नजर आती। घोड़ा अपने सवार के जहनी खलफिशार से बेखबर चला जा रहा था।
सवार ने अपने जहन को झटक कर गिरदोपेश को देखा। वो जरा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफक से उहुद का सिलसिला कोह और ऊपर उठाया। खालिद को मालूम था कि कुछ देर के बाद उन पहाड़ियों के करीब से मदीने के मकान उभरने लगेंगे। उसे एक बार फिर खंदक और पसपाई याद आई और उसे मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बनु कुरैज़ा की उस तबाही की खबर पर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो बहुत खुश हुआ था, मगर खालिद बिन वलीद को न खुशी हुई न अफसोस। खालिद बिन वलीद को ख्याल आया कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते हैं। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे इस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहता हो। उसका जहन पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। घंटियों की मुतरन्नम आवाजें उसे माजी से निकाल लाई। उसने दाएं बाएं देखा। बाएं तरफ वसी नशेब था। खालिद ऊपर ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। उनके पहलू में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। घुड़सवार बूढ़ा आदमी था। ऊंट की रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का ये मुख्तसर सा काफिला उसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने उसे पहचान लिया। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया, तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ झटका दिया और हल्की सी एड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतरा। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जुरैज, और ये सब तुम्हारा खानदान है? अबू जुरैज ने कहा, हाँ, ये मेरा खानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है कि मदीने को नहीं जा रहे। मदीने में तुम्हारा क्या काम? ये कबीला गतफान का एक आदमी था जो नकल मकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जुरैज ने खुद ही कह दिया था कि खालिद मदीना तो नहीं जा रहा, तो खालिद ने उसे बताना मुनासिब भी न समझा। अबू जुरैज ने कहा, अहले कुरैश क्या सोच रहे हैं? क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रोज मदीने वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान उनके आगे हथियार डाल देगा? खालिद बिन वलीद ने कहा, सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीने पर हमला करने गए थे? तो मदीना वालों ने अपने इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी। खालिद ने कहा, हम खंदक फलांग सकते थे, मैं खंदक फलांग गया था, इकरिमा भी खंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। मदीने से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। अबू जुरैज ने कहा, मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। उसने अपना एक हाथ आगे किया जो ज़ईफी से कांप रहा था। बोला, मेरा जिस्म जरा सा भी साथ देता तो मैं भी उस मार्के में अपने कबीले के साथ होता। उस रोज मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज मेरा कबीला मदीने से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा न देता और मदीने पर 3-4 शब खून मार देता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। खालिद झुंझला उठा। उसने अबू जुरैज को कहर की नजरों से देखा और चुप रहा। अबू जुरैज ने पूछा, क्या तुमने सुना था कि युहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जरीद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार कर लिया? खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ सुना था, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जरीद बिन मुसय्यब मेरे कबीले का आदमी था। अबू जुरैज ने पूछा, कहाँ है वो? खालिद ने कहा, वो 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, उसका पता नहीं चला। मैंने सुना था कि युहावा यहूदन उसे अपने साथ यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान के पास ले गई थी और उसने जरीद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था, मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लैस बिन मोशान का जादू जवाब दे गया। जरीद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। बनु कुरैज़ा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ 2 थे, लैस बिन मोशान और युहावा। अबू जुरैज ने कहा, अब सिर्फ एक जिंदा है, लैस बिन मोशान। सिर्फ लैस बिन मोशान जिंदा है। खालिद ने पूछा, और जरीद और युहावा? अबू जुरैज ने कहा, वो बदरूहें बन गए थे, मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना सकता हूँ। तुमने युहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि उसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे, तो खालिद मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि मदीना पर हमले के लिए गतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था?
ये युहावा और उस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊंट चले जा रहे थे। ऊंटों की गर्दनों से लटकती हुई घंटियां बूढ़े अबू जुरैज के बोलने के अंदाज में जलतरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद इन्हिमाक से सुन रहा था। अबू जुरैज ने कहा, जरीद बिन मुसय्यब युहावा के इश्क का असीर हो गया था। तुम नहीं जानते इब्न वलीद, युहावा के दिल में अपने मजहब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जरीद को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। मैं लैस बिन मोशान को जानता हूँ। जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शोबदबाजी उसके बाप का फन था। बाप ने ये फन उसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, या उकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोला, सुन रहा हूँ अबू जुरैज, गौर से सुन रहा हूँ। वो बोला, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीने का महासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की बस्ती को घेर लिया था। लैस बिन मुशान और युहावा जरीद बिन मुसय्यब को वहीं छोड़कर निकल भागे। खालिद ने कहा, हाँ अबू जुरैज, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए। अबू जुरैज ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से उकता गए हो, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो। खालिद ने कहा, मुझे ये बात वहां से सुनाओ जहां से मैंने पहले नहीं सुनी। मैं वहां तक जानता हूँ कि जरीद बिन मुसय्यब अब उसी पागलपन की हालत में मारा गया था जो उस बूढ़े यहूदी शोबदबाज ने उस पर तारी की थी, और वो खुद युहावा को साथ लेकर वहां से निकल भागा था। अबू जुरैज ने कहा, उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।